Hello, friends. In this series, we will be covering and discussing the various mock test questions, all right, for business communication in CSET. Okay. So, see, the best way to study, for CSET, especially because there are so many multiple choice questions, will be if we, cover the course, and then if we cover all these questions also. Okay. So, let's start. The first question of this mock test you can find on the ICSI website. Okay, and it is the very first question, very first mock test. All right. So let's begin. The first question says the proverb "birds of a feather flock together" means. Now this is a proverb, so basically it doesn't have to mean anything literally. Okay, but it stands for a different meaning. Okay, and here the answer is people of like character come together. Now how you can remember this is birds of a feather meaning similar characteristics. Okay, meaning similar characteristics flock together. मतलब क्या है कि birds जिनकी characteristics similar हैं they flock together, they remain together. ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल का में आप मतलब देखेंगे तो यही है पीपल ऑफ लाइक कैरेक्टर कम टुगेदर. ठीक है, तो इसलिए ये जो करेक्ट आंसर है इसमें सी है. ओके, नेक्स्ट हम बात करें. फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट्स may contain a mistake. Identify that part and select the appropriate answer. अब क्या है इसमें, ये एक सेंटेंस है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वी हैव डिवाइडेड वन सेंटेंस इनटू 4 different parts. ऑलराइट, and in one of these parts there is a mistake, so you have to identify that what which of these options is incorrect. Versus 6 prototype in hospitals in India of each device are now being tested. Now as you can see, first of all, the number with this, noun prototype is a noun. Okay, and this is a singular noun, right? Prototype is a single word, so if it is one, in that case you will say prototype, one single. However, because the number identifies here that it is 6, it is more than one, so you have to use the noun form which is plural. ठीक है, प्रोटोटाइप सिंगल नहीं है, यहाँ पे 6 प्रोटोटाइप्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए प्रोटोटाइप्स. ठीक है, और वैसे भी अगर आप बाकी सेंटेंसेस देखेंगे, ऑल द अदर सेंटेंसेस आर करेक्ट. इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया ऑफ ईच डिवाइस आर नाउ बीइंग टेस्टेड. इसलिए फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट वैल्यू इसकी इनकरेक्ट है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आउटसोर्सिंग. व्हाट डज आउटसोर्सिंग मीन्स. देखिए वर्ड में क्या है, आउट एंड सोर्स. सोर्स मतलब यू गेट समथिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब यू गेट समथिंग, एंड आउट मतलब कि बाहर. ठीक है, जो जो भी आपकी एंटिटी है उसके बाहर. सो व्हाट डज इट मीन. देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं. एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग goods and services involving financial, commercial and industrial aspects. प्रोवाइडिंग का मतलब है कि आप किसी को देते हैं. ठीक है, लेकिन सोर्सिंग में जो मैंने बोला इसका मतलब लगता है कि गेट, यू गेट समथिंग, तो ये तो नहीं होगा. द कमर्शियल, नेक्स्ट ऑप्शन है द कमर्शियल प्रोसेसेस involved in promoting and selling and distributing a product or service. Now, this has got nothing. Again here also you are providing, right? You are promoting, selling or distributing, you are not getting anything. Okay, let's look at option C. Contracting out selected functions or activities of an organization to other organization. Okay, what you're doing, you are giving the task out somewhere. Okay, that can do that work more efficiently, and in return what you are getting is you are getting the work done. ठीक है, आप जो आपके काम है उसको बाहर दे रहे हैं किसी और को ताकि आपका जो काम है वो हो जाए. ठीक है, आप अपने सिलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज को यू आर सोर्सिंग देम आउट, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग देम आउट. सो देयरफॉर दिस इज द
करेक्ट ऑप्शन. ओके, बिकॉज आउट मीन्स कहीं बाहर एंड सोर्सिंग मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग. ओके. And just to confirm, let's also look at the fourth option. Fourth option कहता है business or government activity that is purposely designed to stimulate invention and innovation. तो ये तो बिल्कुल भी related नहीं है. ठीक है, तो outsourcing का मतलब आंसर is C. Question number 4 says a dash is used to end a declarative sentence, a sentence which is not a question or an exclamation. मतलब देखिए, क्वेश्चन को जब आप एंड करते हैं तो यू यूज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एक्सक्लेमेशन को एंड करते हैं तो आप यू यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट. देन दिस डेक्लरेटिव सेंटेंस मीनिंग अ वेरी सिंपल सेंटेंस. ठीक है, ऑल दीज यहाँ पर जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में सारे एग्जांपल्स जो हैं, दिस इज अ ऑल दीज आर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है ना, इसमें कोई स्पेशल लेट्स से सरप्राइज या शॉक वाला फीलिंग है या कोई इमोशन का फीलिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ है. सो नॉर्मल सेंटेंसेस, and you all know on normal sentences जो हैं we end in full stop. So the correct answer is full stop. ठीक है, आगे देखते हैं. Question number 5. In dash, several people can talk to each other and see each other on the television screen simultaneously. I think the new normal जो post COVID situation है because of COVID, इसका आंसर सब लोगों को बहुत ही आसानी से पता है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट. चाहे आप जूम की बात करें, चाहे आप हैंगआउट्स की बात करें, चाहे आप गूगल मीट की बात करें, राइट. किसी भी सॉफ्टवेयर की आप बात करें, किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मल्टीपल पीपल. ठीक है, वीडियो या टेली मतलब ओवर ऑडियो या विद वीडियो यू कैन डिस्कस. ऑलराइट, सो फिफ्थ का आंसर इज ए. अच्छा, एक बार ये सब की बात करें, मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है. मल्टीमीडिया इज स्टैटिक इमेजेस. ठीक है, कि अलग अलग टाइप का, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे ऑडियो फाइल्स हों, चाहे वीडियो फाइल्स हों, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया फाइल्स. ठीक है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो गिफ वगैरह कुछ भी हो सकता है, दोज फाइल्स. ठीक है, बट स्टैटिक मतलब आप एक बार भेज चुके हैं. ठीक है, फैक्स. फैक्स आज की डेट में कह सकते हैं थोड़ा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. पहले प्रीवियसली काफ़ी यूज़ होता था बिफोर कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. इससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसका कॉपी स्कैन करके किसी भी नंबर पे, जिसके पास भी फैक्स होता है उसके नंबर पे आप भेज सकते थे. ठीक है, एंड वॉइस मेल इज फॉर्म ऑफ मेल बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो नोट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स टू फिल द टू ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब देखिए, हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा था, तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द. ए होता है जहां पर भी आपकी अनस्पेसिफिक कोई है. ठीक है, मतलब आपको पता नहीं है कि आप क्या किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, जनरल बोल रहे हैं. ठीक है, और ए तब आएगा जब इसके बाद का जो नाउन है दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. ठीक है, अगर यही नाउन वॉवल के साथ स्टार्ट होगा तो फिर क्या आएगा, एन. ओके, एंड द जो है यू यूज दिस विद प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, जैसे किसी का नाम है या किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेशल लेट्स से किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, देन यू यूज द. तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है इट इज़ नॉट एट ऑल यूजुअल अनयूजुअल फॉर डैश एडिटर टू टैम्पर विद राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि एडिटर, कोई भी एडिटर की बात कर रहे हैं हम, किसी स्पेसिफिक एडिटर की बात तो कर नहीं रहे हैं. ठीक है, और एडिटर जो नाउन है, इस नाउन के पहले ये नाउन स्टार्ट होता है आपके एक वॉवल से, राइट. ए ई आई ओ यू, ई है तो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन. एन एडिटर. ठीक है, क्योंकि हम किसी भी स्पेसिफिक एडिटर की बात नहीं कर रहे, जनरली एडिटर्स, सारे एडिटर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा अ या एन. और क्योंकि जो नाउन है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो
द करेक्ट आंसर इज एन। ठीक है, अब ये देखिए तीनों ऑप्शंस में एन दे रखा है, तो द सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर एन एडिटर टू हैम्पर विद राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट। क्या आपको पता है किस राइटर की बात हो रही है? नहीं, किसी भी मतलब अगेन आप बात कर रहे हैं किसी भी जनरल राइटर की। ठीक है, कोई स्पेसिफिक राइटर की बात नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका ए या एन में से आएगा, क्योंकि जनरल वाला आर्टिकल चाहिए आपको, और क्योंकि राइटर में डब्ल्यू या आर की जो साउंड है दैट इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या चूज करेंगे, अ। ठीक है, तो हमारा आंसर ए में एन एंड देन अ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a well written dash delivers the most important information without the recipient even having to open the email। अब बात कर रहे हैं ईमेल की। ठीक है, तो ईमेल में आप जब सबसे पहले देखेंगे, आपने ईमेल देखा होगा, आपको जब मेल बॉक्स के अंदर ही होते हैं तो आपको दिखता है एक तो नाम, ठीक है, और फिर जो टॉपिक दिखता है दैट इज योर सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छे से लिखी हुई होगी तो आपको ईमेल खोले बिना ही एटलीस्ट या पता चल जाएगा कि ईमेल किस बारे में है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट, किस चीज़ के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ईमेल की। सो देयरफॉर द आंसर इज सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, अब आगे हम लोग ईमेल की बात करें, जैसे जब आपने खोला एक बार ईमेल, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं सैल्यूटेशन, मतलब जब आप किसी को एड्रेस करते हैं कि डियर मैम, डियर सर, किसी का नाम बोलेंगे दैट इज सैल्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद मैसेज, जो भी आपका मैसेज की बॉडी रहती है जहाँ पर आप सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, दैट इज योर मैसेज। ऑलराइट, सो द आंसर इज सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन की इनफैक्ट क्वालिटी ही ये होती है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए कि आपका ईमेल किस बारे में है। ठीक है, next question is, any asset that is pledged as security for a loan instrument is called। बेसिकली आपने सुना होगा कि आपको जैसे अगर मान लीजिए एक पर्सनल लोन चाहिए तो किस चीज़ के अगेंस्ट मिलता है। ठीक है, या तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट होती है कि भाई आप हिस्टोरिकली आप हमेशा पैसा वापस कर देते हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट से वो डायरेक्टली पैसा निकाल लेते हैं जहाँ से वो रिकवर कर लेंगे, या फिर कई चीज़ें जैसे कि एक कोलैटरल, मतलब कोई भी एसेट है आपके पास, जैसे हाउस मान लीजिए, प्रॉपर्टी है, या गोल्ड है, राइट, या किसी स्पेसिफिक पर्सन की गारंटी है, ऑल दैट इज कॉल्ड कोलैटरल, जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, एनी काइंड ऑफ लोन। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कोलैटरल बोलते हैं, एनी एसेट दैट इज प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, कि लोन वापस अगर आप नहीं कर पाए तो कैसे बैंक अपनी रिकवरी करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब आपको कुछ देना है, यू आर लाइबल टू पे, आपने किसी से लोन लिया तो यू आर लाइबल टू पे दैट अमाउंट, सो दैट लोन बिकम्स योर लाइबिलिटी। ठीक है, चाहे वो कंपनी हो चाहे आप इंडिविजुअल की बात करें। शेयर मतलब यू ओन अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स। ठीक है, आपने कोई पैसा लगा रखा है कंपनी में, कैपिटल वो वाला फंड्स हैं जहाँ से आपकी बिजनेस जो है, योर बिजनेस विल रन। ठीक है, that is capital. So therefore, asset that is pledged as security for a loan is collateral. Next we have given antonym for the word. Antonym मतलब opposite. ठीक है, words which have opposite meaning. ठीक है, synonym मतलब words which have the same meaning. Okay, so the word is audacity. आपको ये पता होना चाहिए, देखिए whenever there is the question of antonym or synonym, you need to know what the original word that you have to find of what it means. Okay, or in case you do not know the meaning of this word, you can also look for the meanings, okay, of the choice options.
अगर आपको चॉइस ऑप्शंस के मीनिंग्स पता है तो फिर आप निकाल सकते हैं कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, या क्या तीन चार वर्ड्स मतलब ठीक है सिमिलर हैं या अलग हैं। तो देखिए हम एक एक करके बात करते हैं। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मीन्स बोल्ड, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विल कुछ काम होता है, दैट इज ऑडेसिटी, ठीक है। नाउ ऑप्शंस में दिखाते हैं। अफेक्शनेट, नाउ हैज ऑडेसिटी, यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बीइंग बोल्ड or strong willed, has that got to do anything with emotions of affectionate? affectionate मतलब the one with affections, ठीक है, कुछ feelings के साथ, okay? इससे तो कोई मतलब नहीं है। this is not at all neither related antonym nor related synonym, कोई meaning का similarity ही नहीं है। so this is not the answer। lavish, again lavish means particularly luxury oriented, very rich kind of thing, so this also has got nothing to do। bravado, now see, this means bold, and bravado may mean have a similar meaning, right? Because you can see that it is from brave, all right? So even if it is not the exact synonym, it is not an antonym also, okay? So C option is also not there. The D option is cowardice, and this is the right answer, not just because you have eliminated all other options, but because coward means someone who is weak, or scared of something, right? So this is the exact opposite of being bold, that is audacity. Alright, so D option is the correct answer. Let's take the next question. Answering the letters promptly, apologizing for any omissions, or thanking generously for a favor are the few examples of principle in communication. What kind of principle? See, you get you get a mail, all right, or you get a letter, and you answer it promptly, right? You do not make the other person wait too long, all right? Or if you have omitted something, then you apologize. Or if you have if you are asking for a favor, or someone has given you a favor, you thank them. So basically these are all good things, these are good to have. These are basically manners of communication, also called as common courtesy, okay? Courtesy of communication, okay? So this is these are the examples of courtesy principle in communication, okay? Correctness has to do with the content, whether the facts that you are stating, whether the uh, 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 message that you are giving, it is true or not, whether it holds true or not, whether it is correct or not, all right? Clarity, that whatever you wanted to tell, are you able to send across your message very clearly? If I'm trying to say that A belongs to B, does that message clearly get conveyed in my mail, in my letter, in my message, in my way of communication? Okay, that is clarity and completeness. Let's say if through a mode of communication you had to tell five facts, okay, if through any mode of communication you had to convey five facts to person B, are all those five facts being covered completely or not? Okay, so if they are, then that is completeness of communication. All right, these are the different aspects of communication, you can say. All right, so courtesy is the one wherein you talk about politeness, you talk about manners of communication. Noise is a barrier to communication. What kind of barrier is noise? See, communication, as I said, the different aspects are include let's say clarity, completion. So it may be that someone, you know some language, English, and the person B knows only Hindi language, okay? तो यहाँ पर लैंग्वेज ही बैरियर है, ठीक है, विच इज सिमेंटिक, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज सिमेंटिक। वो द सोशो फिजियोलॉ साइकोलॉजिकल मतलब
इसको लैंग्वेज से नहीं करना या फिर शोर मच रहा है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, बट द मेंटालिटी, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, शोर मच रहा है मतलब नॉइज, नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है। इसमें नॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है, पर क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिजिकल साउंड विच इज देयर, अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज देयर, noise means disturbance, so it is a physical barrier. Okay, next question. Always start writing your email with a, सब बोलते हैं ना, hi, hello or warm greetings, right? Yeah, hope your day is going well. What is that? Warm greetings मैंने बोला, that is a greeting. Closing remark, देखिए नाम में ही पता चल रहा है कि this you do in the end. Like जब आप email end करते हैं तो आप बोलते हैं ना, hoping for a positive response or thanking you in advance. That is a closing response. ठीक है। Purpose, that this email is to inform you, जैसा आप बोलते हैं, चाहे ये एक लेटर हो या वो हो, you say that this is to notify you or inform you or this is to request for a 1 day leave, right? And then question तो obviously simple part है। okay, so always start writing your email with a greeting. See, we had started with antonym, अब हम बात कर रहे हैं synonym की। वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। ठीक है। और यहाँ पर आपको बात करनी है कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या है। ठीक है। अब ऑब्वियसली आप कहेंगे मुझे इडियोसिंक्रेसी का ही मतलब नहीं पता, अगर तो फिर मैं सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कैसे निकालूं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है। पहले मैंने देखिए एंटोनिम लेके मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप वर्ड के मीनिंग पे जाएं और फिर उससे कंपेयर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप ऑप्शंस को देख के कैसे आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला मीनिंग वर्ड है अफेक्शनेट। ठीक है। दिस दिस इज गॉट टू डू समथिंग विद इमोशंस, राइट? अगेन कि कैसा, आर यू एन अफेक्शनेट पर्सन। दूसरी बात ये कि दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। ये एक किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हो सकता है टू डिस्क्राइब द पर्सन। हाउएवर इडियोसिंक्रेसी इज एन एक्ट। ठीक है। कि इट इज अ थिंग। ठीक है। इट इज नॉट एन एडजेक्टिव। ठीक है। अगर ऐसा होता इडियोसिंक्रेटिक तो फिर ये डेफिनेटली एडजेक्टिव हो सकता था। ठीक है। बट इडियोसिंक्रेसी, ठीक है, इज नॉट एन एडजेक्टिव। ठीक है। तो अफेक्शनेट नहीं हो सकता। टॉर्मेंटिंग, प्रीपोस्टरस एंड एक्सेंट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको एक्सेंट्रिसिटी का भी मतलब पता हो तो भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसका मतलब, बिकॉज एक्सेंट्रिसिटी एंड इडियोसिंक्रेसी, इडियो ऑल्सो मीन्स सेल्फ रिलेटेड। ठीक है। कि जिसको केवल अपने अराउंड इंफॉर्मेशन पता हो। सिंक्रेसी अपने से ही सेल्फ का इंफॉर्मेशन। सिमिलरली एक्सेंट्रिसिटी ऑल्सो मीन्स काफी एक्सेंट्रिक, मतलब सेल्फ, revolving around self. Therefore, the answer becomes eccentricity. Next question is, which of these report contains information of a routine nature? देखिए routine, जब आप बात करते हैं routine की, मतलब you are talking about a fixed time interval। ठीक है। आप एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात करते हैं, जैसे कि एवरी वीक, एवरी डे, every 15 days, every month or every Monday, Tuesday, Wednesday, something like that, right? So time gap जो है वो every हर occurrence के बीच में सेम टाइम गैप है, फिक्स टाइम इंटरवल है। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक। आप कहते हैं ना पीरियोडिकली। तो सिमिलरली रिपोर्ट्स जो कि रूटीन नेचर की होती हैं, दे आर योर पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ठीक है। अब हम ईडियम की बात करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर। काफी कॉमन ये ईडियम है, यू यूज इट अ लॉट।
basically you are talking about pretended sorrow. You show that you are sad. Tear denotes sadness, but crocodile means that you are just pretending it. Okay, because crocodile does not have real tears. Okay, so what it stands for, the meaning that it conveys is that the pretended sorrow is there. It's not the actual sorrow. Okay, you sometimes students get confused कि इसका मतलब है without emotion. इसका मतलब without emotion इसलिए नहीं, because tear shows kind of an emotion which is sadness. ठीक है, तो without emotion नहीं बता रहे हैं आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इमोशन शोन है दैट इज सैडनेस, बट दैट इज नॉट एक्चुअल सैडनेस. वो एक्चुअल ट्रू सैडनेस नहीं है, इट इज ओनली प्रिटेंडेड. ओके, next is when words are used in communication, either spoken or written, this kind of communication is known as, आप words की बात कर रहे हैं, ठीक है, you are talking, तो that is verbal communication. ठीक है, non verbal communication can be in forms of signs, gestures. Okay, that is non verbal communication. The receiver's response or non response to a message is called, देखिए आपने कुछ भी बोला, ठीक है, या कुछ किया, एंड देन यू गेट रिस्पॉन्स इन रिटर्न, दैट इज योर फीडबैक. बिकॉज द पर्सन A says hi. Okay, this the communication that B is giving back. Okay, so B is giving back this communication. Okay, and this is feeding. He's feeding back the communication, therefore it is called feedback. Okay, input is essentially the first message, the starting message. So basically A has started, A ने जो start किया है, that is your input message. Okay, the answer is feedback. The communication within the organization is called, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे आप एक स्कूल की बात करें, एक कॉलेज की बात करें, अगर वो इन एंटिटीज के अंदर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन. या एक बिजनेस की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो है इंटरनल कम्युनिकेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड एंटिटीज जो उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हैं, उनके लिए है. सो दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बाहर भी जो लोग हैं उनके लिए ये कम्युनिकेशन है, तो देन इट बिकम्स एक्सटर्नल. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन पीयर्स. ठीक है, कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनफॉर्मल, जैसे कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल. ठीक है, एंड वर्बल कम्युनिकेशन तो एनी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो. लास्ट क्वेश्चन इज, in MIS system design, the sources of information may be categorized as, आप MIS सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोर्सेज जो है, देखिए जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज में बी योर इंटरनल सोर्सेज. ठीक है, जैसे कि कंपनी की ही रिपोर्ट्स. ठीक है, कंपनी का ही प्रीवियस सेल्स डेटा मान लीजिए, या क्या क्या HR डेटा, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने लोग वर्किंग थे, कितने नहीं थे, ऑल दिस डेटा. क्यों? क्योंकि दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का इंटरनल डेटा है. सो दैट इज वन सोर्स. ठीक है, इंटरनल. दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि मान लीजिए आप इंडस्ट्री की बात करते हैं अगर, या कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं. ठीक है, तो आप ये डेटा बाहर से ला रहे हैं, दिस डज नॉट बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. आप एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री, एक्सटर्नल फैक्ट्स को देख रहे हैं. सो देयरफॉर द सोर्सेज आर इंटरनल एंड external. Okay, so the next question is, the channel of communication which is mostly associated with gossip and rumors. Okay, अब communication की बात कर रहे हैं, but it is an informal communication. ठीक है, और उसमें भी आर टॉकिंग अबाउट गॉसिप एंड रूमर्स. ठीक है, चाहे देर इज नो ट्रुथ फैक्ट चेकिंग, वो सच है नहीं है, इट्स ऑल गॉसिप्स, दैट इज कॉल्ड grapevine. Okay, it's an informal communication, that is called
ग्रेप वाइन। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं मूवी स्टार्स के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ रहती है, वो सच हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने फैक्ट्स, कुछ भी गॉसिप, ठीक है, बोलता रहता है। दैट काइंड इज ग्रेप वाइन। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल अमाउंट दैट इज borrowed or the outstanding balance to be repaid less interest। ठीक है, you had a friend, ठीक है, this is you, okay, and you asked your friend for a loan of 10 rupees, okay. The friend said, okay, you can take this loan, but give me back 12 rupees, okay, so 2 rupees as interest, okay, after 30 days, after a month, okay. So 30 days is the period, okay, for which you are taking the loan. 2 rupees, the additional amount, that is interest charged, okay, and the original sum that you had taken is principal. Okay, the original amount that is borrowed is the principal. All right. So dividend is when you sort of a stakeholder. Remember, I'm talking about stakeholder here, okay, not shareholder. When you're a stakeholder in the company, you have invested or bought the debentures of the company, and you need to be paid out, against these debentures. You need to be paid out some, interest. Right, so that is what a dividend is. Simple interest is how you calculate interest. All right, so it's that. And installment is, let's say you have taken 10 rupees, and you promise to pay back these 10 rupees in, 4 different times. Okay, so you said that I will pay you 3 rupees every week because you had asked for 12 rupees. I'll pay you 3 rupees every week in the next 1 month. That means this is installment, one. Okay, so the answer here is principle. Before sending any written communication, one should take a moment to review for spelling, grammar, punctuation mistakes. This is called proofreading. Okay. ये आप लोगों ने कई बार आपस में भी डिस्कस किया होगा कि भाई आई हैव टू सेंड एन इम्पॉर्टेंट ईमेल टू एन अथॉरिटी, कैन यू प्लीज़ चेक कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ ग्रामर तो गलत नहीं है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। You ask someone else to check it mostly. Okay, that is proofreading. Courtesy we have already discussed. Over communication, it can be in different forms. You might write a lot more than is necessary, or you are using too many words. Okay, tone is, determines whether it is positive, negative, whether you are ordering something to someone. All those things are covered in the tone. Which of the protocol is used by the web? I don't think I need to discuss this. Every one of you already know, you have worked so much on the internet, that it is HTTP. Now, what it stands for is hyper text transfer protocol. Basically, it transfers, data in form of text. That is hypertext transfer protocol, HTTP. Next question is, a single controlling authority is involved in a vertical type communication. Okay, a single controlling authority, right? There's a single authority, okay, and is involved in a vertical type communication. So basically, this person, whatever uh, uh, this central figure or person has, they're communicating with all the people around them. Okay, different functions, different departments. Okay, this kind of communication, okay, and the central figure or person radiates instruction. Again, see, radiates, so basically it's like going out from the single person. That is what radiate uh, denotes. Okay, instructions and orders to several of his employees who are working under him. So this type of network is called wheel and spoke, because this is the central, wheel, and these are the different spokes. That is what it represents, right? So this is a wheel and spoke. This is how a wheel is.
राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर, यू गेट द पॉइंट. सो एक सेंट्रल फिगर जहाँ पर है, एंड दैट सेंट्रल फिगर गिव्स आउट इंस्ट्रक्शंस अपने सारे पीयर्स को, अपने सारे अलग अलग फंक्शंस को, टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम और हर. दैट इज दिस मॉडल इज व्हील एंड स्पोक मॉडल. कि एक ऐसा नेटवर्क है, वर्टिकल नेटवर्क. अगर केवल आपको जैसे इफ देयर इज अ प्रॉपर हायरार्की, ठीक है, एंड पर्सन ए ओनली टॉक्स टू हिज और हर सब सबऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन. ओके. चेन नेटवर्क मतलब एक सेम लेवल पर, a person talks to b person talks to two further people, c and d, c person talks to three further, or whatever, four two members. That is a kind of chain network, that they build a chain. Okay. Now question number 25 is a conflicted question. Okay, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे. मेरे ख्याल से ये आंसर जो है ये गलत लग रहा है. So we'll not cover this question. We'll go to the next question. Communication word is derived from the Latin word. Communication word जो है ये कौन से word से है? This communis. ठीक है. Stands for talking. Which one of the following is the odd one out? अब odd word में आपको मतलब ज़्यादातर words के meanings पता होने चाहिए. यहाँ पर I think common words हैं gorgeous, elegant, exquisite. Sorry. इन सब का मतलब होता है beautiful. Beautiful के ही ये सब कुछ synonyms हैं. Gorgeous, elegant, exquisite. Hideous on the other hand is an antonym. ठीक है. Opposite meaning word है. Hideous means ugly. Okay. The word phrase vox populi means voice of the people is voice of God. Vox populi means voice of the people is voice of God. Now ये कुछ phrases आपको याद ही करने पड़ेंगे. There's not much in the way you can remember them or something, कि आपको याद ही करना पड़ेगा. Yeah. Just you're talking about a single word. आपको एक sentence दे रखा है जिसके मतलब there are a lot of words जिसका which can be conveyed using a single word. So deliberate killing of whole community or race, ये आप सबको पता होगा, genocide. Whenever you are talking about killings, ठीक है, तो the word will end in side. ठीक है. Now it can be in terms of फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने सुना होगा. ठीक है. पेस्टिसाइड बहुत कॉमन वर्ड है. इसका क्या मतलब है? पेस्ट को मारना. ठीक है. जेनोसाइड मीन्स एक पूरी रेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. जेनोसाइड. तो इस तरह से व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइड, यू आर टॉकिंग अबाउट किलिंग ऑफ किसी एक टाइप के कुछ ज़्यादा लोग. सो एक कम्युनिटी की टाइप की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटे फीमेल इन्फेंट्स हों या फिर पेस्ट्स हों, मल्टीपल entities of that particular community or that particular type. That is side is killing. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं of a whole community or race, that is called genocide. Next question. Given below is a paragraph where the sentences are not in order. So basically jumbled sentences हैं. अलग अलग सेंटेंस से पूरा एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाना चाहिए. तो इसका अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. The first sentence is Columbus called these people Indians. अब देखिए यहाँ पर है दीज पीपल, मतलब ये जो लोग हैं ये कहीं पर पहले हो जाने, दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, लाइक ही हैज दिस पैराग्राफ हैज टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल अर्लियर. ओके. बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड रीच्ड इंडिया. ओके. सो यहाँ पर कुछ कॉजेशन दे रखा है. सो देयर हैज टू बी द बेसिक मीनिंग हैज टू कम अर्लियर. ओके. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. ऑप्शन में भी हमें कहीं पर भी ये फर्स्ट नहीं दिख रहा है. वेरी गुड. And of course, most scholars agree that America was discovered many years ago by Asians who crossed the narrow Bering Strait to Alaska. ठीक है. तो अब ये यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पर फिट होगा ये सेंटेंस अगेन, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है. सो टू भी कहीं पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं दे रखा. ठीक है. दैट इज few lands have been discovered as often as America. ये एक सेंटेंस है जहाँ से हमें लगता है कि स्टार्टिंग हो सकती है. राइट. सो थ्री
is an option wherein you say that okay, the first option is this one. This you can consider. Okay. Fourth sentence is they then spread south and east across North America. अब देखिए they किसी चीज की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्यू लैंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज ऑफन एज अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे किसी चीज की तो पहले बात हो रही है, चाहे वो लैंड की हो, पीपल की हो, राइट, वॉयजेस की हो, ठीक है, डिफरेंट राइट्स की हो। पर ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में ऑप्शन दे भी नहीं रखा है, तो ठीक है। नेक्स्ट is, according to various claims, voyages to the New World have been made by the Phoenicians, Irish, Vikings, and Chinese long before Christopher Columbus reached the Caribbean in 1942. अब ये भी, this can also be one of the first options. ठीक है, 5 can also be considered as the very first option. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अभी तक मतलब फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सारे ही हो सकते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। 5 के हिसाब से 5 के बाद ऑप्शन में है या तो 2 या फिर 4। पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लेम्स voyages to the new world had been made by the Phoenicians, Irish, Vikings, Wales, long before Christopher Columbus reached the Caribbean in 1942। अब देखिए यहाँ पर आपको वैसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कोलंबस के पहले, लाइक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि कोलंबस के पहले भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, ठीक है, या अलग अलग लोग। और ये क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें पहले हम लोगों ने 3 में बात की थी कि अमेरिका जो है कितनी बार पहले भी कई बार अमेरिका डिस्कवर हो चुका है अलग अलग लोगों से। तो बेसिकली ये जो है ये आएगा आपके थर्ड सेंटेंस के बाद। ठीक है, तो थर्ड आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या सेंस क्या बन रहा है कि फ्यू लैंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज ऑफन एज अमेरिका, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी of America, that America has been discovered time and again, and then you are saying that according to various claims, okay, voyages to the new world meaning America had been made previously by the Phoenicians, Irish, Vikings. All these people had reached the Caribbean or America in 1942. Okay, before Christopher. Sorry, what I'm trying to say is that these different people had reached Caribbean before Christopher Columbus, who had reached in 1942. All right. So 3, then comes 5. Then option is whether you get 2 or 1. So now you have talked about, that Christopher Columbus reached America in 1942. Now what will make sense that you're talking about Columbus itself. That okay, Columbus called these people Indians because he thought all this. Okay. So then comes option 1, and then this is in sync with it. All right. And of course, most scholars agree that America was discovered many years ago by Asians who crossed the narrow Bering Strait to Alaska. So therefore, जो कोलंबस ने इनका नाम रखा है, ठीक है, this fact is justifying why Columbus also could have called them Indians. ठीक है, finally आपका फोर्थ ऑप्शन है, so that ends the sentence. So फिर इस तरह से जो ऑप्शन है that is C. ठीक है, so how it goes, few lands have been discovered as often as America. सबसे पहले आप बात कर रहे हैं एक कंट्री के डिस्कवर होने की, फिर आप बता रहे हैं कि सबसे पहले ये सब लोग जो हैं इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर रहने लगे थे, उसके बाद कोलंबस रीच्ड हियर। देन यू आर टॉकिंग इन कंटिन्यूएशन कि कोलंबस ने इन लोगों को क्या बोला, हु हैड सेटल डाउन, ठीक है, एंड सो ही कॉल्ड देम इंडियंस बिकॉज उसको लगा था कि ही हैज रीच्ड इंडिया, एंड दिस वाज इन लाइन विद द फैक्ट कि उस टाइम पर नो this discovered by Asians who crossed the narrow Bering Strait to Alaska. That is why it makes sense for Columbus to have made that assumption. Finally, fourth sentence जो इन लोगों की बात कर रहे हैं कि therefore these Asians then spread south and east across North America and further southward to Central America and beyond. So C option is the correct one. Finally, this paragraph I have discussed, the last 5 questions in this mock test are from this paragraph, and this paragraph I have discussed in detail when I've talked about the uh, passages or written theory.
So we have already covered this passage there.